And now it's live. Hello, Hi. hello friends. Uh, Today is World Menstrual Hygiene Day, and we are celebrating this day on behalf of all women who are menstruating and celebrating their womanhood. आपको मैं एक कहानी बताना चाह रही हूँ कि एक नेहा नाम की एक लड़की है, तो पीरियड्स आए। वो बहुत डरी सहमी होने की वजह से वो अपने फ्रेंड से भी कुछ बात नहीं कर पा रही है। एंड नाउ फ्रेंड को समझ में आ गया स्कूल शी इज इन क्लास, तो वो बात कर नहीं पा रही है, उसको tell नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। देन टीचर और टीचर उसको बात करके समझा रही है। तो एक पोयम है बहुत अच्छी सी जो मैंने सुनी थी, वो मैं आपको सब बचपन जो बीता से अब आगे बढ़ते जाना है। स्वास्थ्य, शिक्षा और समझ के साथ जीवन को खुल के जीना है। बढ़ने की निशानी अनेक, जैसे बढ़ने लगता है सबका कद। नए भावना का होता एहसास और जोश बढ़ जाता बेहद। एक निशानी और है बढ़ने की, और हर लड़की की आती है बारी। इससे तो होती है जीवन की तैयारी, जब आती है माहवारी। तो हैप्पी पीरियड। So she introduced this term as माहवारी पीरियड या मासिक धर्म, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये पीरियड आया है। नेहा बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। टीचर ने उसे सब समझाया कि कैसे पीरियड क्या होता है, क्या क्या नॉर्मल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और क्या कैसे पैड लेना चाहिए, कैसे अपना हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है। तो हर एक की लाइफ में ये मोमेंट आता है, हर वुमन की लाइफ में ये मोमेंट आता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने के लिए आए हैं। हमारे साथ है हमारे गेस्ट, जो कि वी आर फ्रॉम ऑल आर फ्रॉम रायपुर, एंड वी आर हैविंग आवर स्पेशल गेस्ट टुडे. Our first guest is Dr. Nandita Keshwani. She is oncologist, Hello. hospital. Our second guest is Mrs. Parul Parmar. She is HR manager at VNR Space at Raipur. And our third guest is Mrs. Preeti Khasgiwal, and she is perfect homemaker, perfect cook, and she is very gentle, kind, and a social worker. So आज हम बात करेंगे all about menstrual hygiene. I think Preeti ma'am. Hello. Yes. So it is up to should talk, we should support, and we should celebrate the menstrual period. तो अगर आपको जैसे आप बात करते हैं हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी, so like this we should celebrate this womanhood or period as happy period. We should wish everyone as happy period. We should give the like अगर यहाँ को अगर कोई गिफ्ट मिलता है उस दिन, तो उसके साथ वो पीरियड के साथ उसकी शादी पूरी होती है। तो ऐसे ही हमें पीरियड या मीनारकी जो बोलते हैं उससे अच्छी यादें जोड़ना है। जैसे शादी के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है, फैमिली एक्साइटेड रहती है, लड़की लड़का सब कोई एक्साइटेड रहता है। That's how we should be excited for our grades also. And यही attitude हमारे society में there are many social and cultural taboos related to menstrual health, and they feel shy and nervous to talk about this. Menstrual health हो गया, vaginal health हो गया, या sexual health, these are all unspoken problems. And if we talk about them, we can solve the problems very comfortably and easily. So, what is menses? It is a very natural and integral part of woman's life. Every month,
every 60 to 65 days a year, or overall 40 years in a lifetime. Like पीरियड स्टार्ट होते हैं 12 साल के आसपास, 11-12 साल तक, 11-12 साल से, एंड दे लास्ट टिल मेनोपॉज. तो मिनार्की से मेनोपॉज का जो टाइम है वो हो जाता है करीब करीब 38 to 40 years. So this is very long period and we have to live with it. According to the statistics, every 1 out of 2 girls is knowing about her menarche, what is going to happen, and her first informer is her mother or a teacher. जो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करता है वो होता है मदर या टीचर. तो इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं जिसमें कि यूनिसेफ, WHO एंड यूनेस्को, ऑल द international bodies have taken part. So it is all about articulation, awareness, information, and confidence to manage the menstrual health with safety and dignity, using safe hygienic materials अच्छा together ठीक है. with water and water supply and washing facilities. So my first question is for Dr. Nandita. नाना के बारे में. हाँ ओके ओके. Yeah, can you explain why it is so important that menstrual hygiene, what is there and why it is so important? See, like hygiene of the whole body is important, लेकिन हमारा जब periods का time होता है, at during that time menstrual hygiene is very important, क्योंकि ये हमको आगे चल के urinary tract infection से बचाता है, vaginal infection से बचाता है, and it gives a feeling of cleanliness and happiness to a woman. हम अपने ही जब शरीर के किसी अंग को निग्लेक्ट नहीं करते तो हम ड्यूरिंग पीरियड्स अपने प्राइवेट पार्ट्स की हेल्थ एंड हाइजीन को क्यों निग्लेक्ट करें. तो ये हमको हेल्दी फीलिंग फ्रॉम विद इन देता है. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इसको बहुत हाइजीनिक रखें और शुड फील गुड अबाउट इट, शुड नॉट फील सैड अबाउट इट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमको फ्यूचर के इन्फेक्शन से भी बचाता है. Or the cleaning of private parts, the using of clean pads, all is very important. Hello. हेलो. हाँ मुझे आ रही है आवाज. आ रही है. ओके. हाँ मुझे आ रही है. पूजा का कनेक्शन नहीं है शायद. हेलो पूजा मैम. आई थिंक वो ड्रॉप हो गई है. हाँ आप पारुल मैम को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ पारुल मैम आपकी आवाज आ रही है मुझे. जी जी. पूजा का कनेक्शन शायद मिस हो गया है. तो शुड वी कंटिन्यू? या श्योर. सो नंदिता मैम आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे. आई थिंक नंदिता मैम कैन नॉट हियर मी. आपको ओके. नहीं आ रही है. या इट्स सम प्रॉब्लम. Okay, I think she's back.
Yeah, sorry for the disturbance. There was a connection issue. So I hope you have explained the importance of menstrual hygiene. मेरा ठीक Nandita ma'am. है. Yes. Yes. अभी Uh, मैं menstrual hygiene के बारे में बताइए. Yeah. So, menstrual hygiene, as Madam said, it is very important to look into it because it can lead to, if we don't see into it, it can lead to many infections, urinary tract infections or vaginal infections or reproductive tract infections. There are many allergies due to pads or something like that, and we need to know about that. कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि menstruation, when menstruation starts, it starts the reproductive period also. हाँ. So if you are in now menstruating, then if you are in relationship, then you have to be cautious and you have to use some contraceptive method. So it is very much necessary कि अगर सेक्स एजुकेशन अगर हम इसके साथ साथ में देते हैं तो वो बहुत काम करता है. I remember one patient who who has come with persistent nausea, vomiting. She was just 16 or 17-year-old girl, and आई तो उसे nausea, vomiting हो रहा था, and she could not relate with that pregnancy may occur. और जब investigations किए गए तो पता चला कि she is pregnant, and she was like astonished कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया. But so even scientists took 150 years to correlate menses with reproduction. हमारी संस्कृति में सबको पता था कि menstruation it's a start of new life, new journey in a woman's life. बट जब यूट्रस पता चला, ओवरी पता चला, तो जो ओवरी और यूट्रस का कनेक्शन था, हार्मोनल रिलेशनशिप था, दैट वाज discovered within a span of 150 years. So it was very astonishing for us. So next is what are the commonly used methods? What are the commonly used menstrual hygiene materials? क्या क्या हमें commonly पता है जो कि most popular है? प्रीति आंटी, क्या if you can tell us about that. जैसे अभी तो काफी लोगों को पता है सैनिटरी नैपकिन्स रेडीमेड आते हैं और टैम्पून्स हैं, काफी चीजें हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग यूज करते ही हैं. कुछ मिडिल लो क्लास लोग कपड़े भी यूज करते हैं और बहुत ज्यादा जो मैं जिस पे काम कर रही हूँ, मैं ज्यादा कर रही हूँ इंटीरियर्स गांवों में, और जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ लोग क्या यूज करते हैं. उन लोगों के पास बहुत तकलीफें हैं, सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है. गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसे दिया जा रहा है, पर वो भी उनके पास वो भी खरीदने के पैसे नहीं है. जब हम बहुत इंटीरियर्स में जाके देख रहे हैं तो वहाँ ये भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो मैंने मैं जिस पे काम कर रही हूँ उसमें हम लोग फ्री सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं और वो वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं और इको फ्रेंडली हैं. तो उसकी लाइफ करीब 6 मंथ्स तक रहती है, 6 to 8 मंथ्स तक. तो ये हम जाके लोगों को देते हैं, तो वो काफी लोगों को अच्छा लग रहा है और उनसे फीडबैक भी लिया है, तो वो बहुत कंफर्टेबल है इससे. Yeah, it's a very good and social, like एक नोबल कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं कि इतनी प्राइवेट थिंग है ये, बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, और उसके लिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने उसको समझा एंड यू आर हेल्पिंग देम आउट. तो रीयूजेबल और डिस्पोजेबल इसमें काफी अंतर है. हाँ. तो आपको क्या लगता है कि रीयूजेबल किस तरह से इम्पोर्टेंट है और डिस्पोजेबल किस तरह से कन्वीनियंट भी है पर हैजार्डस भी है? डिस्पोजेबल है, कन्वीनियंट तो बहुत है, कंफर्टेबल भी बहुत है, और बट ये है कॉस्ट. जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इनको यूज करते हैं. उसकी प्लास्टिक शीट के कारण आज नालियां जाम हो रही है, पूरी
जो इको फ्रेंडली नहीं है, उसमें एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो मतलब इको फ्रेंडली हो तो भी ठीक है, यदि कोई फ्री दे दे तो भी ठीक है, कुछ नहीं मिलता है तो दे आर यूजिंग वेरी बैड थिंग्स। जो मैंने जाके गाँवों में लोगों से बात की है कि दे आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ क्लॉथ, सिंथेटिक मटेरियल और कोई बोरे का मटेरियल, कुछ भी, यानी वो जो भी उनको सपोर्ट के लिए मिल जाए उस समय। यानी वो लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास कुछ भी कॉटन थिन क्लॉथ नहीं रहता है, सॉफ्ट क्लॉथ नहीं रहता है, तो उनके लिए तो वॉशेबल ज्यादा काम के हैं। या तो वॉशेबल, इट इज रीयूजेबल, और जैसे आपने बताया कि बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत वो फ्रेंडली है। इट इज हाँ। बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो, कपड़ा अगर यूज करते हैं तो। और जैसे इट इज नॉट गोइंग टू हार्म आवर सैनिटेशन सिस्टम, जैसे अभी बताया कि पाइपलाइंस ब्लॉक नहीं हो रही है या और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उस वजह से। या और भी इसमें एक और रिस्क रहता है कि इफ एनीबडी इज इन्फेक्टेड विद सम वायरल इन्फेक्शंस, तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू दैट इन्फेक्शन आल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सोसाइटी, कि वो ओपन अगर कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए या ऐसे कुछ अनअटेंडेड रहे और फिर वो किसी ने टच किया, या फिर इवन फॉर एनिमल्स आल्सो इफ दे ईट, then it can lead to hazardous for them. So there are many things which are good for reusable में एक और मटेरियल आजकल यूज कर रहे हैं, जो कि पैड्स भी आ गए हैं काफी सारे reusable, जो बायोडिग्रेडेबल है, या फिर बनाना या बाम्बू के फाइबर से या सी स्पॉन्ज से, विच आर बायोडिग्रेडेबल, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, सो these are small cup like structures which can be inserted in the vagina. So like जैसे ये uterus है and this is the vagina, so this cup is to be fitted here in the vagina so that जो भी menstrual blood है वो यहाँ पे इस cup में collect हो जाए. So this is very easy to use and reusable, like we इसे 6 या 8 घंटे या 12 घंटे में आपको एम्प्टी करना रहेगा, एंड ये बहुत इजीली हर कोई पेशेंट इसे सीख सकता है और यूज कर सकता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, सो इट इज वेरी मच फ्रेंडली, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी आज तक अभी तक नहीं आए हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद इट। अगर आपको साइज आपकी पता करनी है, देयर आर 2-3 साइजेस इन विच इट इज अवेलेबल, तो वो आपकी साइज के हिसाब से, आपके बच्चे है नहीं है या वैसे करके आप उसको यूज कर सकते हैं। Then another method is tampons. I think Parul ma'am, if you can throw light on tampons. Yeah, actually, this is again like to be inserted in the vagina, but these are not reusable, and like it is again very convenient because it is less messy. You just insert it, and after you will come to know कि कितने टाइम के बाद मतलब you have to replace, वो over the use पता चलता है, उसके बाद उसको आप उसको discard कर सकते हो। बट इसकी भी अगेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी, इट डिपेंड्स बिकॉज इट इज नॉट दैट कॉस्ट इफेक्टिव आई गेस, बट इट कैन बी कैरिड, इट कैन बी यूज्ड, तो वो भी एक बहुत अच्छा, स्मॉल एंड वेरी हैंडी टू यूज। या so I think for working females it is I think very handy, क्योंकि जैसे कि कैरी करना या फिर पैड होता है वो काफी इनकन्वीनियंट होता है, इवन you don't want it to be seen when you're again going to change and things like that, तो वहाँ पे I guess this is really going to be very useful. Yeah. Preeti ma'am, you have worked in rural area like you were saying कि आप घर घर जाके उनसे बात करते हैं, तो उनका क्या एटीट्यूड रहता है आपके, मतलब बात करते हैं वो खुल के या फिर शर्माते हैं, आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, जैसे हम लोग जब गांव में जाते हैं तो जब वो इकट्ठा करते हैं उनको, जैसे किसी उनके टीचर के स्कूल में, या तो स्कूल में जाके टीचर के थ्रू सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, लड़कियों को,
या फिर गांव की लेडीज को एक जगह इकट्ठा करके जब डिस्कस करते हैं तो वो लोग कोई बात नहीं करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, और मतलब वो बहुत शाय फील करते हैं, चाहे बड़ी लेडीज हों चाहे लड़कियां हों, और उनको बड़ा अजीब लगता है। एक दो लड़कियों को तो ऐसा लग रहा था जब बात कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि पीरियड्स तो सब होते हैं, उन्हें ये नहीं पता है सब होते हैं, मतलब उन्हें लग रहा था हमारे साथ होता है, सिर्फ हम ही होते हैं। मतलब हाँ ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब वो 9th क्लास की लड़की से डिस्कस करो तो उसको लगता है या 8th क्लास की लड़कियां भी पीरियड्स में होती हैं, उनसे बात करो तो उन्हें लगता है ये और किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा होता है, और तो इस बारे में मुझे किसी से बात नहीं करना चाहिए। ये चीज तो ये बहुत उनके स्कूल बहुत शाय फील हाँ करती है, तो ये उनके शायद स्कूल में अगर उनको पढ़ाया जाए कि हाँ स्कूल एजुकेशन में के माध्यम एजुकेशन से। में होना चाहिए हाँ कि ये क्या चीज है और कंपलसरी है, इस तरह से उन्हें पता होना चाहिए। तो सो दैट दे कैन क्योंकि नो बिल्कुल बात अबाउट नहीं करना चाहती हूँ उस टॉपिक पे। क्या उनसे जब बात करो तो वो मतलब चेहरा ही नहीं, आंखें तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके चेहरा कर लेती हैं जब हम उनके बीच जाते हैं, तो लेडीज सिर पे ऐसे और खींच लेगी अपना, मतलब उनको लगता है इस टॉपिक पे क्यों बात की जा रही है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और फिर जब उन्हें बताओ कि ये आपको ऐसे यूज करना है ये, तो बहुत शुरू में तो हेजिटेट करती हैं, बाद में फिर थोड़ा जब भी खुलती हैं फिर धीरे धीरे खुल के बात करती हैं, मतलब पर तो भी हाँ जैसे जैसे जब भीड़ उनकी छट जाएंगी, हम जाने लगेंगे, तब धीरे से आके हमसे बात करना चाहेंगी या फिर कुछ बताना चाहती हैं, पूछना ऐसा मैंने चाहेंगे या महसूस किया। बताना चाहेंगे। हाँ सही बात। तो जेंट्स का एटीट्यूड आपको क्या लगा? जेंट्स ऐसा तो बिल्कुल लगता भी बात है नहीं कि करते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि जो स्कूलों में भी हम गए तो यदि कोई जेंट्स टीचर है तो उन्हें कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं था इस पे बात करने के लिए, जो चीज मुझे लगी। यानी हाँ लेडी प्रिंसिपल है या टीचर है वो तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है इस टॉपिक पे, बट वो लोग तो बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते भी नहीं कि हम मतलब इस बारे में बात करें, या गांव में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उन लोगों को। मतलब एज अ पेरेंट भी दे आर नॉट मच कंसर्न। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही अपने को बेसिक चीज का समझ में लेना है कि सोशल टैबूज या कल्चरल जो बिलीफ्स है हमारे, उसको हम हाँ ग्रास रूट लेवल पे कैसे ठीक करें। तो हाँ एजुकेशन आई थिंक इट इज द मेन पार्ट, कि अगर आपको क्लास में ही बताया जाए 4th 5th में, और वो भी को एजुकेशन, अगर लड़कों के साथ, लड़कों को भी उतना ही जानकारी हो जितना लड़कियों को हो, तो वो उतना हाँ शायद फील नहीं करेंगी, हाँ। है ना। तो पारुल मैम, आपके ऑफिस में कैसे है, मतलब व्हाट डू यू एक्सपीरियंस इन योर ऑफिस कॉर्पोरेट सिनेरियो, व्हाट इज देयर? वेल ऑफिस में आई गेस कि ये हमारे यहाँ काफ़ी वर्किंग फीमेल्स हैं, और ये इश्यू मतलब ओपनली डिस्कस तो नहीं किया जाता, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट पीपल डू कंसिडर इट एज अ सोशल टैबू, बट कॉर्पोरेट्स में फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रोफेशनलिज्म है, जिसकी वजह से इवन फीमेल्स दे कैरी देमसेल्व्स वेरी प्रोफेशनली अबाउट दिस होल थिंग। एंड मतलब वो नहीं सरफेस नहीं होता ये चीज उन मतलब because I am a female and I'm in HR, I do understand and I do interact at times. So ऐसे issues होते हैं कि there is different levels of bearing pain. पारुल मैम की सबके साथ आवाज नहीं आ same रही है। level के bearing capacity भी नहीं होती है, and सबके अलग अलग issues होते हैं, तो यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी इक्वल, किसी को ज्यादा पेन होगा किसी को कम होगा। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। कभी भी कुछ ऐसा है तो दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर सिक लीव एंड वो चली जाती है, या हम वी डू कीप मेडिकल सप्लाईज, तो पेन किलर्स होते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ जो मेल कलीग्स हैं वो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि सभी के घरों में सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी है या वाइफ है या सिस्टर है। तो देर इज एन अनसीन एग्रीमेंट if they see that some female colleague is not well, so there is a like unseen agreement ki theek hai, this could be the reason, and therefore there is that support.
So in this whole career of 20 years, मैंने कभी कोई ऐसा इश्यू नहीं फेस किया जहाँ पे इस रीजन से किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम हुई हो या किसी मेल कलीग को कोई प्रॉब्लम हुई हो. तो काफी प्रोफेशनली कंडक्ट होती है ये सारी चीजें. Only thing is कि yes we do communicate and हम काफी educate भी करते हैं with respect to how to maintain that kind of hygiene, whether it's about disposal of used napkins in toilets or keeping toilet clean and things like that. So apart from that, it is very professionally dealt with, though not openly discussed or talked. But there is absolutely complete support in this matter. Actually, education, I think education is the cornerstone. कि Yeah. अगर आपको पता है तो आप उसको समझ रहे हो, आप उस कंडीशन को समझ के चल रहे हो और वो हेल्पिंग नेचर हो जाता है फिर मेल्स का. अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आप और मुझे लगता है कि यंग एज में, एडोलेसेंट एज में तो दे डोंट अंडरस्टैंड. आफ्टर दे गेट मैरिड, जब उनको मैरिज होने के बाद वाइफ से दे कम क्लोजर, देन दे अंडरस्टैंड कि हाउ मच इट इज मीन्स वरीसम और पेनफुल समटाइम्स. तो शादी के बाद मुझे लगता है कि जेंट्स आर मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस इशू. Concerned. Right. So we come to common if the complaints. society, What are the common tends to complaints it. during menstruation, like minor elements जो होते हैं? So what are these common problems encountered in day-to-day life? Nandita ma'am, please can you explain it? During periods, during Yeah, periods, common the common problems complaint which a girl suffers. Normal जो natural थोड़े बहुत minor elements होते हैं. हाँ, वो पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, फीलिंग ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं होना, एक थोड़ा सा अंदर से नॉट लेजी फील करना, एक लेथार्जिक फील करना, डल फील करना और मूड स्विंग्स होना, इरिटेबल होना, ये commonly we come across such type of problems. Yeah. So I think around 70 to 80% patients में या girls में minor pain तो रहता है. So it is up to them that how much they can bear, or if they want to take some hot fermentation या फिर कुछ pills ले सकते हैं, या कोई nausea vomiting है, mood swings है, या starting में जब menarche होता है तो और सबसे बड़ी irregular बात cycles का भी एक issue होता है. हाँ, ड्यूरिंग द पीरियड्स हम इन जो सिम्टम्स, जो नॉर्मल माइनर एलिमेंट्स हैं, इनको कम करने के लिए एक जो कर सकते हैं वो है कि माइनर योगा कर सकते हैं. डे टू डे जो हाउस होल्ड वर्क है जो करते आ रहे हैं रोज, वो कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ फीलिंग डल एंड डिप्रेस्ड, यू कैन गो आउट, टेक अ वार्म शावर, keep a warm hot water bag on stomach, treat yourself with hot chocolates, and pamper yourself. So these can elevate the mood and make you feel normal about it. Like happy periods, you can enjoy the periods timing. हाँ, मतलब उस अगर अपन बहुत ज्यादा वहाँ फोकस करेंगे तो उधर ही तकलीफ महसूस होती रहेगी. इससे अच्छा थोड़ा सा अपना विजन को ब्रॉड करके थोड़ा माइनर स्ट्रेचिंग करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक गरम शॉवर ले लेंगे, अपना हैप्पी फूड खा लेंगे, हैप्पी बुक पढ़ लेंगे कुछ, तो ऑल दीज आर मूड एलिवेटिंग. You feel good, and when you feel good, everybody around you create an aura of goodness and happiness around you. Yeah. So that's why I said कि हर बार हम खुद को या अपने फ्रेंड्स को we should wish happy periods, ना कि एक पेनफुल या कुछ अब डर वाला पीरियड आने वाला है ऐसा फील नहीं करना है. So अपने मन का माइंडसेट भी हमें थोड़ा
हाँ, and we have to stop considering it as an outcasting factor. ये कैसे कर सकते हैं Yeah. अपन एजुकेशन में इसको इंक्लूड करके ना इसको आउटकास्ट होने से बचा सकते हैं. मेक इट अ पार्ट ऑफ Yeah. योर नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल हैबिट. जैसे Yeah. सिर दर्द होता है तो कभी डायरिया होता है तो कभी पैर में मोच आ जाती है. लाइकवाइज इट इज वेरी नॉर्मल. इट इज नॉट समथिंग टू बी टेकन सो मच important. Like Yeah. And so there are sometimes like menarche जब होता है, जब period start हाँ. होता है, तो there are hormonal fluctuations. So they are not set. जो HPO हाँ. axis होता है, hypothalamo pituitary हाँ. ovarian हाँ. axis, हम्म. it is not stable. It grows. तो वो एक हम्म. stable होने में time लगता है. That time periods are very irregular and mothers हाँ. are more concerned. हाँ. 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 Mothers को भी educate करना कि now it is going to happen. You have to take some minor medicine or give some pills, or if you want you can access the healthcare worker. तो वो एक हाँ. चीज आप उनको educate कर सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो normal है. हाँ. Yeah. और There are कई some चीज percentage of women who comes with amenorrhea. लाइक पीरियड्स ही नहीं आए उनके, 16 साल हो गए, 18 साल के हो गए, तो ऐसे में हमें टेस्ट करवाना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन. कहीं इम्पोफोरेट हाइमेन है या फिर यूट्राइन अजेनेसिस है या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है. सो दैट कैन बी टैकल्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस. Otherwise, normal we can try and consult our doctor and माइनर एलिमेंट्स को हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं. आजकल पीसीओडी का भी एक काफी प्रिवेलेंट कंडीशन है जिसमें कि वेट गेन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से वी सी मोर ऑफ पीसीओडी पेशेंट्स, मोर ओबेस गर्ल्स, and for that we have to stress more again on lifestyle changes, yoga, meditation, exercises and healthy diet. You have to take more of fruits, no binge eating, no junk food जो हमारे बड़े बोलते आए हैं आज कई सालों से कि होटल का मत खाओ. And during this pandemic we are following that. We are not anything from outside. And गुना में एक ही अच्छी बात हुई कि चलो हमने कुछ तो अच्छा किया, हम घर का खा रहे हैं. और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि लाइक रेगुलर गायनिक चेकअप जैसे अपन बोलते हैं कि 40 इयर्स के बाद हर किसी का चेकअप होना चाहिए, ऐसे ही फीमेल्स का एट द एज ऑफ 13-14 इयर्स, हाँ 12 to 14 इयर्स के बीच में ना रेगुलर गायनिक चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज लोग ना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इस कारण से ना बहुत आगे चल करके बहुत सारी डिजीज अपन को लेट पता चलती हैं. तो इट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस सो दैट मेनी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड एट एन अर्ली स्टेज. Yeah. So Preeti aunty, what do you say about कि वहाँ पे urban area and rural area the scenario is very different. बहुत डिफरेंट है. तो रूरल एरिया में उनको वॉशिंग फैसिलिटी या सैनिटेशन या प्राइवेट टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज कैसे रहती है? प्राइवेट टॉयलेट्स तो फिर भी आजकल अभी सभी घरों में है, और पानी का भी ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि या तो वो लोग तालाब पे जाते हैं या उनके वहाँ पानी आता है सभी के यहाँ, तो पानी का भी प्रॉब्लम नहीं लगा. टॉयलेट्स का भी ऐसे नहीं प्रॉब्लम लगा. और मैंने उन लोगों को जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ उसमें उनको बताती हूँ क्विक ड्राई प्रोडक्ट है ये, तो ये जल्दी सूख जाता है, तो फिर ये 10-15 मिनट धूप में रखने से सूख जाता है, तो वो लोग ठीक रहता है उनके लिए, क्योंकि बारिश में उनको बहुत तकलीफें आती है, क्योंकि बारिश में इतनी वहाँ सुविधाएं नहीं होती है गांव में, तो कंफर्टेबल रहता है ये. So they are quite happy with this reusable pads and हाँ, वो खुश हैं. स्कूल्स गर्ल्स और गांव की लेडी, खेतों में काम करने वाली औरतें, हाँ, और लेबर तो जो गांव के बिल्कुल लेबर हैं उनके बीच हमने जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उनके पास कोई सॉफ्ट कपड़ा नहीं होता है, तो उनको ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कोई किसी ने इस पे ध्यान दिया.
तो Yeah. So what if is there any story behind this initiation of your project? कि आपको कैसे लगा कि हमने ये करना चाहिए? ऐसे तो देखिए कई बार होता था कि कुछ सोशल वर्क करने की इच्छा है तो मैं अपनी फ्रेंड्स को बात करती रहती थी। एक बार जैसे कचरा बाहर फेंकते हैं तो एक औरत कुछ कचरे से ढूंढ रही थी, तो वो कपड़े के टुकड़े उठा रही थी। तो मैं उसको देख रही थी, फिर मैंने उससे पूछा तुम ये क्या क्यों उठा रही है? तो सब कपड़े इतने गंदे, इसको ले जाके, क्योंकि प्लास्टिक बीनते हैं तो समझ में आता है कि वो लोग उसको बेचते हैं और उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो कपड़े क्यों उठा रही है मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि तुम ये क्यों कर रही हो? तो पहले कुछ नहीं बोली, फिर वो बोली काम आता है। फिर मैंने पूछा क्या काम आता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गंदे कपड़े इसको कौन काम में लेता है। फिर बस वो ऐसे देखने लगी, तो पता नहीं मेरे मुंह से अचानक निकला कि ये क्या तुम खुद यूज करती हो, महीने में यूज करती हो? तो फिर वो हाँ बोली। तो मैं शॉक रह गई कि ये मतलब लोग कैसे ये वाले जो गंदे से कपड़े इतने फेंके गंदे हुए कपड़े, कचरे हाँ। में। तो फिर मुझे लगा कि मतलब फिर और बातें इस तरह जाके हम लगा कि गांव में ही शायद जरूरत है या अनपढ़ ऐसे लोगों, फिर बस्तियों में जाके लोगों से बात की। तो मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि गुजरात के एक सोशल वर्क है, वो लोग इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं और गांव में देते हैं। फिर मैंने उनसे वो मंगवाया और यहाँ यूज किया, यहाँ वो सब करके शो किया। Yeah, वेरी गुड it's वर्क very कृति nice आंटी। project हाँ, और वेरी हमने गुड भी वर्क। काफी आपके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हाँ, मैंने तो आपको भी दिया लोगों था कि आपके भी कोई गरीब पेशेंट्स हो तो आप उन्हें भी दीजिएगा। तो ये अच्छा लगा कि थोड़े समय के बाद लोग आके वापस से मांगते हैं और फिर साथ में और अपने रिश्ते नातेदारों के लिए भी लेके जाते हैं कि हमें उनके लिए भी दे दो, अभी उनके लिए भी दे दो। अभी एक बहुत अच्छा लगा, एक दिन 2 औरतें आई और बोलती हैं कि हमें दे दो 3-4 पैकेट। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि मेरी लड़की की शादी हो रही है, उसको ससुराल लेके जाना है। तो वो अपने बेटी का इतना ध्यान रख रही है कि उसके बारे में भी हाँ, आगे का सोच ये रही बहुत है। अच्छा लगा। या मतलब माँ तो रखती है, लेकिन देखिए बेटियां भी, एक बार मैं स्कूल में गई थी तो स्कूल में हम जब समझा रहे थे तो सब लड़कियों को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक छोटी सी लड़की थी, तो वो सब चले गए, फिर धीरे से आके मेरे पास कहने लगी मुझे एक पैकेट और दे दो। तो मैंने कहा आपके पास तो है ना, हमने दिया एक पैकेट। तो कहने लगी कि मेरी माँ के लिए मुझे चाहिए। तो मुझे लगा देखो उसको अपनी माँ का भी दर्द आया कि माँ को तो आता ही है, लेकिन छोटी सी लड़की को लगा कि मेरी माँ को भी इसकी जरूरत है, तो मैं अपनी माँ के लिए भी ले जाऊं। तो या श्योर, वो तो वैसे एक मैं बार जो काम आप कर रही हूँ उसके लिए मैं यही कहूंगी कि मैं तो बहुत एक छोटा सा माध्यम हूँ, बाकी बहुत लोगों को उसकी जरूरत है और बहुत ज्यादा जगह जरूरत है, तो उसमें बहुत लोगों को जुड़ना चाहिए। और कोई मतलब करने के बाद लगेगा कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा मन को सुकून लगता है कि ये एक ऐसी या तकलीफ है कि उनकी जब देखो तो, जब उनकी बातें सुनो, उनकी तकलीफें देखो तो लगता है कि सबको इसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल। काफी लोगों की हेल्प मिलती है, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग मुझे काफी एनकरेज करते हैं और इसमें मुझे अच्छा लगता है ये करना, इसलिए। या हम भी आपका साथ बिल्कुल देंगे, दे रहे हैं और आगे भी बिल्कुल देते रहेंगे। बिल्कुल। तो और अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, ये जो माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं सारे यहाँ से, तो एक दिन मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो उनको भी होती होगी। तो फिर जब मैं ड्राइव करके वहां गई हाईवे पे और देखा लेडीज थी, मेरे पास बॉक्स था ही, मैंने ऐसे उनको बुलाया मुझे कि तुम आओ, फिर गाड़ी में से मैंने एक एक पैकेट उनको दिया। तो वो मतलब सच में उनकी आंखों में जो चमक और जो एक खुशी हंसी जो थी, ऐसा लगा कि हमें बहुत जरूरत थी और आपने दे दिया। फिर भगवान ने नेक्स्ट डे भेज मैं दिया ज्यादा आपको। क्वांटिटी में लेके गई और वहां पे काफी संस्थाएं अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो उन लोगों को हमने जाके बॉक्सेस दिए कि आपको जो भी लेडीज को जिनको जरूरत हो, मेडिकल स्टॉल भी एक लगा है वहां पे, उनको भी जाके मैंने 3-4 बॉक्सेस दिए। मैंने कहा आप, तो उन्होंने भी कहा कि इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है, ये चीज अभी तक किसी ने डोनेट नहीं की। तो मुझे अच्छा लगा वहां जाके भी कि ये वेरी एक नाइस। जरूरत की चीज है।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप प्रीति आंटी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुन के Thank इतना you, अच्छा thank लग रहा है, तो आपको करके कितना अच्छा लग रहेगा। हाँ मैं बस एक जरूर। चीज और बोलना चाहूंगी कि अपन ना ग्रास रूट लेवल पे नुक्कड़ नाटक और ड्रामा करके, क्योंकि नुक्कड़ नाटक आजकल बहुत अच्छा मीडिया हो गया है लोगों को कोई भी चीज समझाने का, जो आंगनबाड़ी वगैरह होता है, हाँ जो हाँ हाँ ICDS वगैरह होता है, वहां पर जाकर के ग्रास रूट लेवल पे समझा करके बता करके ये भी एक हम स्टेप कर सकते हैं। Yeah. जरूर। हाँ। पूजा मैम डिस्कनेक्ट हो गई लग रहा है फिर से। हम डिस्कनेक्ट हो गई हैं और हाँ हाँ मेरे को मैं एक लगता चीज है और अब बता दूं, पूजा आ रही है तब तक आप लोगों को भी बता दूं कि जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर, आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ हाँ आ हाँ रही है, बताइए। कई लोग चाहते हैं इसमें अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जैसे मेरे से कुछ लोग ले जाते हैं कि हमारी माँ की पुण्यतिथि है तो हम कुछ दान देना चाहते हैं, तो वो इस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स ले जाके देते हैं लड़कियों को स्कूलों में या बस्तियों में। तो इस तरह के काम भी लोग कर सकते हैं और आगे आके। ठीक है। आई थिंक हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। आई थिंक पूजा मैम आएगी शायद हाँ हाँ टू कंक्लूड। तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये किस मटेरियल से बना रहता है? ये एक अभी समय कॉटन। मेरे ख्याल से अपना समय पूरा टाइम हो पूरा गया हो है। गया क्या? हाँ, टाइम पूरा हो गया है। पूजा मैम का कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो गया है, ओके तो ओके, हाँ, फिर अपन इसमें पीछे से और जुड़ते हैं, है ना? जरूर ठीक जरूर है। नेक्स्ट टाइम भी रहेगा। हाँ मैं हाँ पारुल की हाँ आंसर कर दूं पारुल को। ये एक हाँ हाँ कॉटन का सॉफ्ट मटेरियल है और थोड़ा जी। इसमें थिक रहता है ये, पर रीयूजेबल है, सॉफ्ट है एकदम और क्विक ड्राई होता है, स्टेन फ्री मटेरियल है ये। इस टाइप का मटेरियल है, मैं आपको दिखा दूं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा है हाँ, कि एक वो वो जाने, हो गया। हम लोग क्योंकि हाँ अगर अगर इसको किसी पैक को करके ऐसे मैं समझ में आता है कि कोई कोई ऐसा वेस्टेज नहीं, प्रोजेक्ट हमको है। न्यूज़पेपर में ही पैक करके इसको पैकेट्स बनाती हूँ मैं इसमें। वेरी ओके, गुड। और करीब हाँ एक पैकेट में 3 नैपकिन्स होते हैं, तो 3 नैपकिन्स एक लेडी को हम लोग फ्री देते हैं। वेरी गुड। हाँ राइट, ठीक। सो डू थैंक वी यू। एंड थैंक यू, दिस सेशन? थैंक यू। यस हाँ, यस, ओके, थैंक थैंक यू, यू। या थैंक यू। थैंक यू नाइस सो टू मीट मच। यू ऑल। या थैंक यू। थैंक यू।